शुरू करें। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 25 मार्च 2011 को जो कम्युनिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से भेजा गया था प्रधानमंत्री जी के यहाँ, वो आपके सामने समाचार पत्रों में आ चुका है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि वित्त मंत्री जी के उस ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ था कि अगर तत्कालीन वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी, अगर वो अपनी बात पर अड़े रहती, इफ वुड हैव स्टक टू दैट ओपिनियन, तो फिर ये घोटाला रुक सकता था। ये बात कही गई थी उसमें, और उसको लेकर के देश भर में काफी चिंताएं हुई कि ये क्या बात है। वित्त मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि उस समय के वित्त मंत्री ने अपने स्टैंड को बदल दिया या उस पर वो अड़े नहीं रहे, इसके कारण से ये लॉस हो गया, वरना ये रुक सकता था। और फिर उसके बाद बहुत सा नाटक हुआ, उनसे मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, कांग्रेस अध्यक्षा से मिले। अब उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट सामने आया, वो भी वित्त मंत्रालय की तरफ से गया, और वो 26/9 को गया, 26 सितंबर। कम्युनिकेशन डेटेड 25 मार्च 2011 sent by DEA to PMO on 2G spectrum. This is in the context of the current controversy about a communication dated 25th March 2011, Annexure 1, sent by the DEA to the PMO enclosing a note on 2G spectrum, a copy of which has been obtained by an RTI activist, Mr. Vivek Garg, from the PMO. Shri Subramaniam Swamy has produced this note before the Honorable Supreme Court, which it is understood has taken on record. इसमें वो कहते हैं आगे कि ये जो नोट हमारा था, जो पीएमओ के यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री से गया था, वो कहते हैं वो मॉडिफाई किया आप ही के दफ्तर ने। That was modified by your office. और वो ऐसा है कि पीएमओ के यहां से ड्राफ्ट MOF response on 2G issues from Govind Mohan to some Mr. Prabhat. Dear Prabhat, the note sent by you has been modified substantially. As asked by DG, I am mailing you the modified version as attachment. The modifications have been made keeping in mind that the facts need to be elaborated more extensively, interpretations which are consistent with the PAN government response need to be juxtaposed suitably, and reconciliation to the extent possible attempted with the past DEA positions and the positions being adopted now. The latter two editions are shaded in green for clear demarcation. जो मॉडिफिकेशन है वो उसको उन्होंने ग्रीन कलर में कर दिया। तो इसमें आप इनका जो एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसमें लिखते हैं कि
In reply, Joint Secretary, Cabinet Secretariat via an email, which I am quoting, which I have quoted, March 18, 2011, wrote as follows. The latter two editions are shaded in green for clear demarcation, etc. The modified version of the note contained 32 paragraphs, of which 18 paragraphs were highlighted in green color. It was in para 18 of this revised note that the following sentence appeared in green highlight, that is the modified version. Kya? Finally, it is also clear that had MOF, that is the then MOF, expressed a contrary view, the issue of charging the 120 operators who had got LOIs in January 2008 for the startup spectrum of 4.4 megahertz could have been explored further, invoking clauses 5.1 and 43.54 of the US license, which inter alia provide for any license condition procedure of allocation of spectrum and or quantum of spectrum to be modified by the licensor at any time without assigning any reason. This sentence, after consultations with the Cabinet Secretariat in PMO, got revised and appeared in paragraph 17 of the note sent to PMO on March 25th. जो इसमें 18 में है वही इनके 17 में एग्जैक्टली एक ही फर्क है. देयर मॉडिफाइड वर्जन क्या है? There was a way out by invoking clause 5.1 of the US license. They have omitted very carefully 43.54, which inter alia provide for modification at any time the terms and conditions of the license. If in the opinion of the licensor it is necessary or expedient to do so in public interest or in the interest of the security of state or for the proper conduct of the telegraphs, DOT could have invoked this clause for cancelling licenses in case MOF had stuck to the stand of auctioning the 4.4 megahertz. तो ये प्रणब बाबू का अकेले का नहीं है, तो पूरी एक्सरसाइज है. तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ एक्सरसाइज हुई. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठी, लॉ बैठी, पीएमओ बैठा, कैबिनेट सेक्रेटरीट बैठा. और क्यों किया ये? कहते हैं ताकि जो पीएसी के सामने बयान हो रहे हैं सबके, वो एक से हो, उसमें कोई किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना आए, किसी तरह का कोई कंट्रडिक्शन ना आए. तो दे आर ओनली, जो कुछ हो रहा है सब इसलिए हो रहा है कि पीएससी हैड इंक्वायर्ड एंड गॉट अप टू द क्रक्स ऑफ द मैटर. और क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम did not stick to his guns, did not object, did not stand up to the occasion and allowed this to happen. फिर देखिए 30th जनवरी को जो इन्होंने मीटिंग की है, सब पोस्ट स्कैम है. वो कहता है कि FM said that for now we are not seeking to revisit the current regimes for entry fee or for revenue share. जो हो गया उसको हम रिविजिट नहीं कर रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? माने क्या है इसका? इसलिए जो बार बार ये बात कही जा रही है, ये असली में समझने की बात यही है कि किसी भी तौर से ये अब कोई नहीं कह सकता कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लॉ मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, पीएमओ, कोई भी इससे अछूता नहीं है. सबको जानकारी थी, सबने अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश की है, मगर सभी उसमें शामिल है. कोई इससे इनकार नहीं कर सकता. अगर ये पीएमओ के यहां से अप्रूव हो के आया डॉक्यूमेंट, तो पीएमओ या प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि उनका विश्वास है चिदम्बरम के ऊपर? अब यह सवाल उठता है कि उनका विश्वास किस पर है? चिदम्बरम पर है या अपने कार्यालय पर है या वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री पर है? किस पर है? सलमान खुर्शीद साहब फरमा रहे हैं कि एक मामला जो कोर्ट में पड़ा हुआ है उसको पैरेलल नहीं चलना चाहिए. हम नहीं चला रहे भाई, आप ही चला रहे. ये नोट जो बने हैं ये हमने थोड़ी बनाया, तो आपकी सरकार के नोट्स हैं. यू आर रनिंग ए पैरेलल फाइल्स कि भाई ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है.
आपको चिंता यह है कि आपने पीएससी में कुछ कहा, कोर्ट में कुछ कहा है, तो रिकंसाइल कैसे करें? कहते ना, रिकंसिलिएशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल. रिकंसिलिएशन, व्हाट आर यू रिकंसाइलिंग? ये गवर्नमेंट अगर एक है, इफ देयर इज वन सिंगल गवर्नमेंट, व्हाट आर यू रिकंसाइलिंग? इसका मतलब यह है कि यू आर एट क्रॉस पर्पसेस. आपको यही पता नहीं यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है. Therefore, I again reiterate that whatever we have been saying about this 2G scam has been further proved, that the then finance minister could have stopped that and he failed to stop that, and therefore he is responsible for this scam. And the Prime Minister owes an explanation to the nation how it happened under his very nose. दूसरा, अभी जो इन्फ्लेशन है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है. फूड इन्फ्लेशन तो स्काई रॉकेटिंग. गवर्नमेंट सेज कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा अब इस खरीफ की प्रोडक्ट का, प्रोड्यूस का. लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है. पहले कहा जा रहा था कि जब नई हार्वेस्ट आ जाएगी फूड इन्फ्लेशन रुक जाएगा. नहीं रुका. फिर कहा गया कि अगर मॉनसून अच्छा होगा तब कुल मिला के ब्रॉड पिक्चर आ जाएगी, तब रुकेगा. नहीं रुक रहा. वाई? हम बार बार कह रहे हैं, कई साल से कह रहे हैं. द कॉमर्स कमेटी की हमारी रिपोर्ट थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें वी हैड स्पेल्ड आउट कि आपके यहां क्या गड़बड़ियां हैं. द गवर्नमेंट हैज नो प्राइस पॉलिसी. इस सरकार के पास प्राइस एंड वेजेस की कोई पॉलिसी ही नहीं है. सिवाय इसके कि कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है, इसमें इनका ध्यान ज्यादा है, लेकिन प्राइस एंड वेज, उसके बारे में इनकी कोई पॉलिसी नहीं है. कभी कहते हैं ये सप्लाई साइड की गड़बड़ है, कभी कहते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसीज की गड़बड़ है, कभी कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज की गड़बड़ है. और सरकार ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक पे छोड़ दी कि आप आइए, कभी रिपो रेट बढ़ा दीजिए, कभी डिपॉजिट रेट घटा दीजिए, कभी सेविंग्स बैंक का रेट बढ़ा दीजिए, डिपॉजिट रेट. बट अगर सिर्फ करेंसी के कंट्रोल से प्राइसेस कंट्रोल हो जाती तो दिक्कतें क्या थी आजकल? रिजर्व बैंक के अलावा फिर सरकार की जरूरत क्या थी? रिजर्व बैंक हमेशा करता रहता. रिजर्व बैंक ये कहता है पॉलिसी बनाना आपका काम है, मैं तो सिर्फ करेंसी सप्लाई देखता हूं, बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट नहीं जाना चाहिए. लेकिन आपकी करेंसी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? Why is rupee continuously falling against the dollar? सारी दुनिया में डॉलर फॉल कर रहा है, घट रहा है, हमारे हिंदुस्तान में डॉलर बढ़ रहा है. Why? जो मेल्टडाउन अमेरिका में है और यूरोप में हो रहा है, और बाकी के बहुत से छोटे देश उसमें परेशान हैं, उसका असर हिंदुस्तान में धीरे धीरे आएगा. नॉट बिकॉज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान की जनता वो इस मामले में बहुत सतर्क है. वी आर ए सेविंग बेस्ड कंट्री, डोमेस्टिक सेविंग्स हैं बहुत हमारे यहाँ. कंज्यूमर कंजम्पशन का लेवल अभी उतना हाई नहीं है. वी हैव एक बहुत बेसिक कंजम्पशन से आगे नहीं बढ़ते हैं. सो दिस सेल्फ restrained by the people of India regarding consumption and their traditional genetic, I may say, traits of saving. Savings are in our genes.
इसलिए ये देश बचा हुआ है अभी तक. व्हाट इज द गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन इन इट? हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मेरे पास फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आया, इंडियाज पैरामीटर्स फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग बिकॉज कंट्री इज सेविंग. मैंने कहा बट नॉट द गवर्नमेंट. कंट्री इज सेविंग फॉर पास्ट सो मेनी मिलेनिया. हम तो सेविंग बेस्ड हैं. व्हाट इज दिस? हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू escape the deleterious consequences of meltdown in banking all over the world and the disease is spreading to Indian banks. अभी भी आपने देखा कि the rating of the State Bank of India has gone down. It's not a good sign. तो आर्थिक दृष्टि से भी ये, then manufacturing is declining. और अगर दुनिया में ये मेल्टडाउन है तो आपकी जो सर्विसेज सेक्टर अभी तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा. इसलिए दिस गवर्नमेंट इज कंप्लीटली आइदर इग्नोरेंट और कहते हैं होने दो, जो कुछ हो रहा है चलने दो, भगवान के भरोसे जहां हो जाएगा पहुंच जाएंगे. दे हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन द इकोनॉमिक fundamentals, parameters per se. प्रधानमंत्री भी गए हैं कान में, मैं नहीं समझता कि वो कोई नया मॉडल दे सकते हैं. वर्ल्ड नीड्स ए न्यू मॉडल. द ब्रेटन वुड मॉडल्स हैव फेल्ड. व्हाट इज इंडियाज मॉडल? व्हाट इज इंडियाज recipe for this serious disease? How are they going to provide jobs? अखबार में खबर देने से कि 2.5 करोड़ जॉब्स होंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होती. एक सॉलिड प्लान चाहिए. And if the harvest is good and prices of minimum support prices have been raised, why the farmers are committing suicide? ये बिल्कुल these are, इसको कहते हैं bare facts हैं सामने. And then the security, the Chinese threat. अब वो कहते हैं कि हम इतने लोग भर्ती करेंगे. कब करेंगे? कितने टाइम में करेंगे? जब तक आप भर्ती की शुरुआत करेंगे तब तक चाइना अपनी फौजें खड़ी कर देगा ले जाके. Why are you not developing I may say the expected missiles what the country should have? मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर रहे पूरे तौर पर अपने डिफेंस सिस्टम्स को? वाई आर यू अलाउइंग चाइनीज ट्रूप्स टू पास इनटू POK? We must strengthen all the different segments in our hardware sector. Whether it is submarine, nuclear submarine, whether it is nuclear missiles, whether it is more sophisticated armament. The government has, I wouldn't say, as I may say, ignored completely. And when the Prime Minister says that China is one of our best friends, how can you expect Defense Ministry to work on the scheme of modernizing your armed forces? No foreign minister or defense minister would work against the best friend. So the Prime Minister must tell us whether China is his best friend or country's best friend.
Once China was very good friend of Pandit Jawaharlal Nehru, and we knew the consequences of that friendship. So we will raise this issue in the Parliament about the defense preparedness and also the price rise.